آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 13 اگست 2025 اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ پر انسانی مدد کا ایئر ڈراپ شو، 6 ملکوں نے اوپر سے گرایا کھانا مگر پیٹ خالی، جان کا بھی خطرہ برقرار۔ حماس نے دیا بڑا بیان، کہا اسرائیل جلاؤ راکھ کرو کی پالیسی پر مچا رہا ٹوٹل تباہی۔ جرمنی کا ڈبل گیم، پہلے اسرائیل کو ہتھیار دینے پر لگائی روک، پھر چپکے سے اسرائیل کو ہی دے دیا بے حد خطرناک ہتھیار۔ لبنان نے ایران کو سنائی سخت بات، کہا حزب اللہ سمیت کسی کو بھی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں، ہمارے اندرونی معاملوں میں نہ دو دخل۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں دھماکہ، مجاہدینوں نے گیس پائپ لائن اڑائی، پنجاب کے کئی علاقوں میں گیس سپلائی ٹھپ۔ پاکستان کی پانی والی دھمکی، شہباز شریف بولے انڈیا کو سکھا دیں گے سبق، اویسی نے دلائی برہموس کی یاد۔ روس کا ایک دن کا سب سے بڑا قبضہ، ٹرمپ پوتن میٹنگ سے پہلے یوکرین میں 110 اسکوائر کلومیٹر پر جھنڈا پھہرایا۔ اور روس کا سستا تیل بنا سنجیونی، بھارت سرکار اور تیل کمپنیاں کاٹ رہے چاندی، عام آدمی ٹھگا گیا، منافع 25 گنا، راحت 0۔ ان کے علاوہ بھی ہیں کئی اور اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ غزہ میں 6 ملکوں نے آج پھر انسانی مدد کا ایئر ڈراپ کیا، ایئر ڈراپ شو۔ جارڈن، UAE، جرمنی، بیلجیم، فرانس اور اٹلی، ان کے ہوائی جہازوں نے آج غزہ میں 119 پیلٹ کھانے کا ایئر ڈراپ کیا۔ ہر پیلٹ میں تقریباً 1 ٹن کھانے کا سامان تھا، 1 ٹن۔ اسرائیل نے 26 جولائی کو پھر سے ایئر ڈراپ کی پالیسی شروع کی تھی، لیکن ایئر ڈراپ سے اتنی مدد نہیں پہنچتی جتنی کی زمین کے راستے آ سکتی ہے۔ اور اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ پیکج اوپر سے گرتے وقت لوگ اس کے نیچے آ کر اپنی جان بھی گنوا سکتے ہیں۔ لیکن جن 6 ممالک نے ایئر ڈراپ کیا ہے جارڈن کی مدد سے، اور جارڈن نے بھی کیا ہے، جارڈن کو چھوڑ کر کسی بھی ممالک میں نہ مسلم میجورٹی ہے، نہ مسلموں والے ان کے نام ہیں، وہ لوگ مدد کر رہے ہیں۔ ان کی مدد کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو صرف تنقید کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، مذمت کرنے والے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی سعودی عرب، UAE ان لوگوں نے ایئر ڈراپ کی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مذمت کرتے ہیں۔ بڑھتے آگے، غزہ سٹی میں حالات ایک بار پھر سے تانا تنی کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے بدھ کے روز اسرائیلی فوج پر الزام لگایا کہ وہ غزہ سٹی میں شدید اور جنگجو گھسپیٹ کر رہی ہے۔ حماس حکومت کے میڈیا دفتر کے ڈائریکٹر جنرل اسماعیل التھوابتا نے فرینچ نیوز ایجنسی AFP سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ سٹی میں شدید گھسپیٹ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ حملے ایک خطرناک تیزی کی نشانی ہیں جن کا مقصد طاقت کے زور پر زمین پر مالکانہ حقیقت کو بدلنا ہے، یعنی قبضہ کرنا ہے۔ التھوابتا نے الزام لگایا کہ اسرائیل جلاؤ اور راکھ کرو کی پالیسی اپنا رہا ہے، یعنی ایک ایسی منشا جس کے تحت عام لوگوں کی ملکیت، دکانوں، گھروں، بنیادی ڈھانچے کو پوری طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے، سب کچھ مٹیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ حماس کے آفیشل کا یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب اسرائیلی فوج نے غزہ میں نئے فوجی آپریشن کے لیے فریم ورک کو منظوری دے دی ہے۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اس نئے آپریشن کا مقصد حماس کی بچی کچی فوجی طاقت کو کچلنا بتایا جا رہا ہے، لیکن فلسطینی موومنٹ اور غزہ کے عام لوگ اسے ایک اور تباہی کی شروعات مان رہے ہیں۔ غزہ سے ایک بڑی خبر ہے اور بری بھی۔ اسرائیلی حملوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں 123 فلسطینی شہریوں کی جان لے لی۔ ان میں 21 ایسے لوگ تھے جو صرف مدد اور کھانے کی تلاش میں نکلے تھے۔ 437 لوگ ان حملوں میں زخمی ہوئے۔ فلسطینی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے کہ اس دوران 8 لوگ، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں، بھوک مری سے دم توڑ گئے۔ اب تک غزہ میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 235 ہو گئی ہے، جن میں 106 تو معصوم بچے ہی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیل کی اس جنگ نے اب تک 61,722 فلسطینیوں کی جان لے لی ہے۔ 1,54,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اب بات جرمنی اور اس کی دوگلی پالیسی کی۔ جرمنی نے اسرائیل کو نئی پنڈبی دینے کو منظوری دی۔ برلن کے اخبار تاز کے مطابق جرمن حکومت نے اسرائیل کو ایک نئی پنڈبی یعنی سب مرین ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب کچھ دن پہلے ہی جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی پر پارشل روک لگانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک آزاد فلسطین کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں۔
जब बर्लिन में सरकारी प्रेस ब्रीफिंग में इस मामले पर सवाल हुआ तो जर्मन इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया, वो बचते रहे। ये कदम ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब इसराइल की गजा जंग को लेकर जर्मनी के अंदर और यूरोप में सख्त मजम्मत हो रही है। बनिस्बत इसके वो हथियार, हालांकि सबमरीन क्या करेगी गजा के लोगों का, लेकिन मिसाइल तो सबमरीन से भी लॉन्च होती है, फिर भी ये सब हथियार दिए जा रहे हैं। इसराइल पर यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों के साथ जिनसी तशद्दुद यानी सेक्सुअल अब्यूज़ के सबूत मिल गए हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि यूएन के पास यकीनी मालूमात हैं, पक्के सबूत हैं कि इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार फ़लस्तीनियों के साथ जिनसी तशद्दुद और दीगर संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ये इल्ज़ाम इसराइली फ़ौज के हाथों कई जेलों, एक हिरासत सेंटर और यहाँ तक कि एक फ़ौजी अड्डे पर पेश आए वाक़यात से जुड़े हैं। कोई हो, पुलिस हो, फ़ौजी हो, सब एक से। गुटरेस ने इसराइली यूएन सफ़ीर डैनी डैनन को लिखे ख़त में कहा कि वो इन रिपोर्ट से शदीद तौर पर परेशान हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसराइली फ़ौज का नाम उनकी अगली रिपोर्ट में जंग के दौरान जिनसी तशद्दुद करने वाले गिरोहों की फहरिस्त में डाल दिया जाएगा। हिटलर क्या कर रहा था? हिटलर क्या कर रहा था? आज क्या हो रहा है? लेबनान ने ईरान को दो टूक सुना दिए, सीधी सीधी खरी खरी बात कह दी है, साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह समेत किसी भी ग्रुप को हथियार रखने की इजाज़त नहीं मिलेगी, भले वो आपका मंजूर नज़र क्यों ना हो। लेबनान के सदर जोसेफ आउन ने बुध को ईरान के सीनियर ओहदेदार अली लारिजानी से मुलाकात में ये सिक्योरिटी के चीफ हेड हैं, उनसे साफ कह दिया कि मुल्क के किसी भी ग्रुप या तंजीम को हथियार रखने या विदेशी सहारे पर चलने की इजाज़त नहीं है। यानी ईरान सपोर्ट करना चाहे हिजबुल्लाह को तो ये कबूल ना किया जाएगा लेबनानी हुकूमत की तरफ से। ये बयान उस वक्त आया है जब लेबनानी कैबिनेट ने अमेरिकी मदद से बने रोड मैप को मंजूरी दे दी है जिसमें ईरान के करीबी हिजबुल्लाह को निहत्ता करने, उसके हथियार छीनने का टारगेट है। जोसेफ आउन ने कहा कि लेबनान ईरान के साथ ताउन के लिए तैयार है, लेकिन ये सब मुल्क की खुद मुख्तारी और आपसी इज्जत के दायरे में होना चाहिए। अली लारिजानी ने जवाब में ये कहा कि ईरान लेबनान की खुद मुख्तारी का हामिल है, उसकी इज्जत करता है और उसके फैसलों में दखल नहीं देता। उन्होंने मुकावमत यानी हिजबुल्लाह को दोस्त बताते हुए कहा कि लेबनान को दुश्मन इसराइल और दोस्त में फ़र्क रखना चाहिए और हमेशा मुकावमत की कदर करनी चाहिए, रेजिस्टेंस की, हिजबुल्लाह की कदर करनी चाहिए। ये ईरान लेबनानी हुकूमत से कह रहा है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से पेश किया गया ये प्लान हिजबुल्लाह को धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता निहत्ता करने के सबसे तफसीली तरीके पेश करता है, लेकिन हिजबुल्लाह बार बार कह चुका है कि वो हथियार नहीं छोड़ेगा, भले ही पिछले साल इसराइल के साथ जंग में उसकी क़यादत का एक बड़ा हिस्सा मारा गया हो। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसके खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लक्की मरवत इलाके में आज फिर एक धमाका हुआ। शुबह है कि मुजाहिदीन ने एक बड़ी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। इस धमाके के बाद पंजाब के मियांवाली और आसपास के इलाकों को गैस सप्लाई ठप हो गई। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन में बारूदी मवाद लगाकर, एक्सप्लोजिव्स लगाकर विस्फोट किया गया, धमाका किया गया। ये वही जगह है जहां पिछले 3 महीनों में 4 बार ऐसे हमले हो चुके हैं। मतलब साफ है, हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत कागजों में लड़ रही है और ज़मीन पर पाइपलाइन बार बार फट रही है, उड़ रही है। पाकिस्तान से जुड़ी 2 और खबरें हैं। पानी पर पाकिस्तान गर्मी दिखा रहा है, लफ्ज़ों में बिजली कौंध रही है, पर हकीकत में टंकी खाली है। इस्लामाबाद से बड़ी बड़ी धमकियों की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडिया को सीधी वार्निंग दे डाली है। कहा कि दुश्मन यानी इंडिया पाकिस्तान से एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, अगर कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाएंगे जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। अच्छा, मतलब 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी लीडर्स इंडिया को धमका चुके हैं। और वजह क्या है? सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और हम अपने हक से एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। वैसे पाकिस्तानी अखबारों को मैं पढ़ता हूँ तो पता चलता है पाकिस्तान में पानी की किल्लत तो वैसे ही है, आवाम परेशान है, आवाम वहाँ की तरक्की चाहती है, लेकिन हुकूमत ऐसी है कि उधार पे उधार पॉलिसीज़ है नहीं, और आवाम को बिल्कुल ज़ेर कर देती है, कोई ख्याल नहीं रखती।
पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रहे और फिर वो जंग की धमकी देते हैं या मज़ा चखाने की धमकी देते हैं पानी के मुद्दे पर। आपको अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए। हो सकता है जो मौजूदा हुकूमत की पार्टी से लोग ताल्लुक़ रखते हो पाकिस्तान के, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अच्छे ना लगे, लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए बात कर रहा हूँ कि वो परेशान है। उनको सहूलत देने के बारे में सोचना चाहिए। जंग 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 ये सब सियासी बयानबाजी अच्छी नहीं लगती। अब शहबाज शरीफ ने धमकी दी तो उन्हें जवाब भी भारत से मिला। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडस वाटर ट्रीटी पर दिए गए बयान के बाद हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन हैदराबाद से, पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है लेकिन इंडियन हैदराबाद क्या हैदराबाद है और इतना बड़ा, खैर, वहाँ के जो MP हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बेकार की धमकियों से बाज आना चाहिए क्योंकि भारत के पास अपनी मजबूत ताकत मौजूद है, खुद की ताकत। ओवैसी ने साफ लहजे में कहा कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसी धमकियों से हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को बातचीत और मसले हल करने के रास्ते अपनाने चाहिए, ना कि लगातार बयानबाजी और धमकी वाली सियासत से। बात रशिया यूक्रेन की। रूस यूक्रेन जंग में 1 साल का सबसे बड़ा इलाकाई कब्जा अब सामने आया है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन को चौंका दिया है। रूस ने यूक्रेन में पिछले 24 घंटे में ऐसा फायदा हासिल किया जो पिछले 1 साल में नहीं हुआ था। AFP ने अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के डाटा के हवाले से बताया कि 12 अगस्त को रूसी फौज ने एक दिन में 110 स्क्वायर किलोमीटर इलाका कब्जा लिया। ये मई 2024 के बाद रूस के लिए एक दिन का सबसे बड़ा फायदा है। आमतौर पर रूस को इतनी तरक्की करने में 5-6 दिन लगते हैं, लेकिन हाल के हफ्तों में उसकी रफ्तार तेज हुई है। इसी बीच अमेरिका और रूस के सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन इस जुमे को अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि डोब्रोपिलिया के करीब रूसी फौजें 10 किलोमीटर यानी 6 मील तक आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन उनका दावा है कि हम जल्द ही उन्हें तबाह कर देंगे, ज़ेलेंस्की का। खैर, इस साल अब तक रूस की तकरीबन 60-70% तरक्की डोनेट्स्क रीजन में हुई है। ये वही इलाका है जिसे क्रेमलिन रूस ने सितंबर 2022 में अपने साथ मिलाने का दावा किया था। फिलहाल ये थी कुछ अहम खबरें जो आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।